unit tests, sessional exams, and we have done everything in a timely and systematic manner. We have provided e-content to our students in form of more than 250 videos which are published on YouTube. All these efforts have been liked by our students and the parents as well, and have been acknowledged by the print media. In the right spirit, as we are health educators, we have continued counseling the people about the precautions to be carried out for avoiding corona in a very right way, either in the form of questionnaires providing all information which has received lot of response, or educational videos or news articles. And this webinar series is also in the same spirit, as this pandemic is very hard on human lives all across the globe, not only physically, financially, but as well as mentally. Earlier, when we used to have a small cough and cold, we used to say it is a viral fever, it will go in 2 or 3 days. Nowadays, nobody will dare to do that, and nobody will be peaceful but full of anxiety, because we don't know what is looming in the future. There is uncertainty about everything, and nobody is able to truly relax and enjoy. As rightly said by my colleague, the Indian values are again standing out in front of the global arena. The strength of the family values are one such thing. Swamiji is a great motivator. I have heard him physically on 3 occasions in 3 different locations, and many a times I have seen him on TV. He can nicely explain values, ethics with very good scientific explanation. His worldwide experience, his educational qualifications, and his spiritual power makes him very effective to reach to the hearts of everyone in a very convincing manner. Today evening is one such occasion wherein we shall be enthralled by Swamiji's wisdom and his spiritually scientific words. So this is a very special occasion, and we have deliberately touched this subject because not only physical health is important, mental health is equally important. And I give over my further these things rings to my colleague, Professor Godse, who will give a brief introduction about today's very august and very auspicious resource person. Thank you. Thank you, Dr. Jain, sir. It gives me immense pleasure to introduce to you all our today's speaker, Pujya Shri Gyanavatsal Swamiji. He is a motivational, eloquent speaker and has inspired millions of people across India, USA, Europe, Canada, Australia, and New Zealand. Through his enthralling speech, he has created an everlasting positive impact in people's lives, transforming their intellectual, emotional, and spiritual quotient. He is associated with Buchasanwasi Sri Akshar Swaminarayan Sanstha, which is a global social spiritual organization committed to the service of God and society based on Vedic teachings propagated by Bhagwan Sri Swaminarayan. His Holiness Pujya Gyanvatsal Swamiji has pursued his graduation in mechanical engineering in 1992. He was then initiated as sadhu by His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the fifth spiritual successor of Bhagwan Swaminarayan. Till date, Swamiji has interacted with more than 25,000 families across 30 countries of different ethnic groups. He has delivered more than 15,000 talks and speeches across the world. He has also interacted with more than 3 million people and 5,000 leaders from various social and professional backgrounds. His Holiness Pujya Gyanvatsal Swamiji has inspired the mankind all over the world through various topics like celebrating our existence, human in man, attitude, the master key, happy family. Also, he has motivated regarding the critical phases of life which humans have to face in today's world, like ethics in profession, stress management in daily life, work-life balance, and many more. It's a pleasure to welcome Pujya Swamiji to enlighten us and teach us the spiritual way to become a better human being. Now I request Swamiji to enlighten us to the joys of family life.
Namaskar, everybody. My pranams. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण देव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. It gives me immense pleasure to rejoin with your family, that is KK Wag family, the KK Wag Institute of comprising many educational institutes, and hearing about the activity of the organization as an educational institute. It was a pleasure and a matter of pride, I think, for definitely all of the alumni and me as a guest today, because you all have come together to create such a wonderful institute that is in the benefit of society at large. And you are graduating out, that is, you are producing so many educated youngsters every year. So first of all, I must appreciate your activities, and I definitely congratulate you all for the wonderful being together, working together, and producing some extraordinary result, as I heard in the introduction. And especially Professor K.S. Jain. We are quite good friends, and we have been knowing each other since quite a few time, and would interact on time and again. And on his warm invitation, today we are back to meet each other. As he said that these are the times of Corona, and we know about lockdown and social distancing, and we can't come together as a gathering in an auditorium. But the modern technology do support us in coming together virtually. So today we have again met each other virtually. And so again, my innermost good evening and pranam to all of you who have been on this platform today evening. And as been told by Dr. Jain that not only we need to take physically care of ourselves, but at the same time, in these times of Corona, when we are all home, stay home position, and we are with our families, perhaps this is the longest time and period that we have been with our families for so long a time. And that has given us, of course, if we look at it positively, has given us immense joy to be with our family. Of course, we are concerned, we are a bit stressed out, we have a bit of a tension about the coming days, about the future, about the brightness of the future. But still, well, each generation upon this earth faces some big crisis of this kind, either a pandemic or a war or any other such type that could really impress upon them for the coming years to just be more positive and just come out of it. It would take time. But when we are with our family, and as Harvard University suggests that being with your family, the near and dear ones whom you love and who love you, is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद ये है. Would you like me to continue absolutely in English or a mix of English and Hindi? I'm comfortable with both. I think as we discussed, Swamiji, we can have a mix of both. Fine, fine. Yeah. Thank you. Thank you. So बात ये थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये बात है कि इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है. तो 110 देशों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया. करीबन 1 लाख से ज्यादा परिवार को उनके स्वयंसेवक मिले. ये प्रश्न पूछा कि आपकी दृष्टि से पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है. तो 8 साल तक ये सर्वे चला. एक रिपोर्ट शीट तैयार हुई और उसमें यह बताया गया कंक्लूजन के रूप में कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद है जिन व्यक्तियों को आप चाहते हो, जिन व्यक्तियों के प्रति आपको प्रेम और आदर है, और जिन व्यक्तियों को आपके प्रति प्रेम और आदर है, उनके साथ समय बिताना, to spend quality and quantity time with the near and dear ones whom you love and respect and who love you and respect.
is the greatest joy upon this earth. वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद है. तो वो आनंद के बीच आप सभी अभी बैठे हो, कि परिवार के साथ बैठे हो. Family is a divine unit, and it is the principal source of not only society, but national greatness or decadence. मतलब समाज या देश को उन्नति की ओर जाना है तो मुख्य स्रोत शक्ति का परिवार है. और अगर समाज और देश में कोई भी प्रकार की कमी आती है, समाज और देश में कोई भी प्रकार की पीछे हट आती है, तो भी उसका मूल कारण तो परिवार ही है. तो कहने की बात यह है कि हम परिवार हमारा सबसे बड़ा आनंद है. It is the greatest joy upon this earth. And when you say that it is the greatest joy upon this earth, वो भी आपको मिल रहा है. So how can you extract maximum joy of your family life, not just in the times of Corona, of course, more in the times now, but with certain understandings, with certain way of life, with certain attitudes, that is thought processes, you can definitely enjoy this family life lifetime, the joys of it, lifetime. तो उसमें सबसे पहली बात यह है, 1986 में एक प्रसंग बना था. हमारे जो गुरु हरि परम पूज्य प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज, वे और सब संत प्रदेश में एक सत्संग यात्रा के साथ साथ हमारा जो गांधीनगर में अक्षरधाम बन रहा था, उसके लिए थोड़े म्यूजियम के क्यूरेटर्स को मिलना, इसके लिए पधारे थे. तो वहां जर्मनी गए थे. जर्मनी में वहां स्टटगार्ट गए थे. स्टटगार्ट में हम जानते हैं कि मर्सिडीज बेंज जो एक प्रीमियम कार है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां स्टटगार्ट जर्मनी में है. तो वहां सब संत पहुंचे, उनको गाइड दिया गया था. गाइड ने पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संतों को दिखाया और बड़ा सब अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया कि इतनी इतनी व्यवस्था हमने की है मर्सिडीज गाड़ी में, और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि अभी भी हम बहुत कुछ सुधार सके. We can still improve upon this Mercedes car. Basically, our intention to improve is like, even if an accident is caused, even if the whole car is damaged, the life of the person should be saved. व्यक्ति बचना चाहिए अगर एक्सीडेंट हुआ तो भी. ये उनका मुख्य मकसद था. इस दिशा में कहीं सुधार उन्होंने किए थे. उस वक्त उन्होंने ये बात बताई थी कि एक्सीडेंट हुआ तो एक बलून निकल जाता है स्टीयरिंग और जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है, गाड़ी चालक की छाती के बीच, तो जो स्टीयरिंग एकदम छाती पे आ जाता है, घुस जाता है और हमारे लंग्स फाड़ देता है, वो नहीं बनता है. ये सभी बातें उन्होंने बताई. उस वक्त हमारे एक संत ने उनको पूछा कि एक्सीडेंट कौन करता है, गाड़ी करती है, व्यक्ति करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था. Who commits the accident, car or the person driving? सहजता से वो मर्सिडीज बेंज के गाइड ने बताया कि स्वामी जी, वो तो हमेशा गाड़ी चालक ही एक्सीडेंट करता है, उनकी भूल की वजह से होता है. तब हमारे संत ने उनको पूछा कि सुधार कहाँ करना है, एक्सीडेंट कार में करना है, व्यक्ति में? कार में तो आप जरूर करते हैं, जितना हो सके आप करते हो, करना चाहिए, ये अच्छी बात है. लेकिन व्यक्ति में भी सुधार तो करना चाहिए ना, कि वो दारू पी के न चलाए गाड़ी, पूर्ण होश में हो तब चलाए, नींद आती हो तब न चलाए. ये वो कितनी बातें हैं. He said, Swamiji, you are right. We need to improve upon the person more than the car. तो प्रथम बात जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में ये आती है कि every family member has to introspect where I need to improve, where I need to change, so that I can become a better family member. मैं एक अच्छा व्यक्ति, एक पारिवारिक व्यक्ति
अच्छी तरह से बन सकूं, उसके लिए मुझे अपने आप में क्या सुधार करना है, मुझे अपने आप में क्या कुछ बदलाव लाना है, मेरे स्वभाव में, मेरी प्रकृति में, मेरी बोलचाल में, मेरे व्यक्त होने में, कुछ बातचीत में, सोने का टाइम, बैठने का टाइम, खाने-पीने का समय, इसमें मैं कहाँ सुधार ला सकता हूँ? ये बात सभी को सोचनी है। वैसे परिवारजन सभी तो यही समझते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, बाकी के सब में सुधार चाहिए। यही हम मानते हैं कि आई एम फाइन, आई एम ओके, आई थिंक एवरीबॉडी इन द फैमिली नीड्स टू इम्प्रूव सो दैट परिवार में सब सुखी हो सके। तो कहने की बात यह है कि वी नीड टू चेंज एंड चेंज इज इनएविटेबल, ओनली चेंज इज कांस्टेंट। ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उसी से पारिवारिक जीवन का आनंद आता है। आपकी खाने-पीने की, बैठने-उठने की कोई आदत परिवारजन को ठीक न लगती हो, तो आपको सुधार करना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट दैट द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स adjust to you. You need to adjust to all the family members because you want to extract the joy of family life. तो आपका ये दायित्व बनता है। तो चेंज में एक प्रथम बात ये है, एक बहुत अच्छा पुस्तक का शीर्षक है एवरी मैन्स मिशन, और इस पुस्तक के लेखिका है मिस रेबेका बियर्ड। ये लेखिका रेबेका बियर्ड ने एक अच्छा प्रसंग इस पुस्तक में लिखा है। एवरी मैन्स मिशन पुस्तक में ये बात लिखी है कि एक बार कोई महिला को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। वे कोई प्रसंग में ये लेखिका रेबेका बियर्ड को मिली। ऐसे ही बातचीत करते हुए उनको पता चला कि इनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। रेबेका बियर्ड ने दूसरे दिन इस महिला को अपने ऑफिस में बुलाया और साहजिक उनसे वार्तालाप चालू। वार्तालाप में ही रेबेका बियर्ड को पता चला कि इनको घर में फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा फ्रिक्शन है, मतलब घर्षण है, और छोटे-मोटे झगड़े चलते रहते हैं। आगे कुछ बातचीत करते हुए उनको पता चला कि ये महिला का ऐसा स्वभाव है कि मैं जिस प्रकार से सोचती हूँ, परिवार में सभी कोई उसका आदर करे। मैं जो परिवार में करना चाहती हूँ, सभी कोई इस परिवार में, सभी परिवारजन इस प्रकार से फॉलो करें। तो ये एक एटीट्यूड उनका था। ये रेबेका बियर्ड ने वार्तालाप में उनसे एक बातचीत में ये बात जानी। ये आर्थराइटिस के प्रॉब्लम के लिए महिला ने दवाई करवाई थी पिछले 2-3 साल से, शायद एक ऑपरेशन भी करवाया था, लेकिन फिर भी कुछ सुधार नहीं हुआ था। लेखिका रेबेका बियर्ड ये पुस्तक एवरी मैन्स मिशन में लिखती है कि फिर मैंने उनको एक सुझाव दिया, एक सजेशन किया कि देखो, आपको ये प्रॉब्लम कई साल से है। लेट अस डू वन थिंग कि आप इस प्रकार का भाव रखें, इस प्रकार की प्रार्थना करें, इस प्रकार के शब्द अपने मन में बोले कि मैं किसी भी प्रकार का एटीट्यूड इस प्रकार का नहीं रखूंगी कि परिवारजन सभी मैं जो कहूं उसी तरह करे, सब कोई मेरा ही माने। मैं मेरे परिवार में प्रिंसिपल ब्रेड विनर हूं, तो मेरा अधिकार है ये परिवार पर सबको कुछ कहने का, और सब कोई मुझे आदर दे, इस प्रकार की अपेक्षा भी आप न रखें। तो इस प्रकार की प्रार्थना हृदय की गहराई से, पवित्र भाव से रेबेका बियर्ड ने ये महिला को करवाई। दूसरी प्रार्थना ये करवाई कि मैं हमेशा अपने परिवार को प्रेम ही दूं। परिवार में कोई छोटा-मोटा प्रश्न हो, परिवार में कोई अ, सुझाव देने की बात हो, तब प्रेम से मैं सजेशन करूंगी, लेकिन इस प्रकार का आग्रह कभी नहीं रखूंगी कि मेरा सजेशन ही मान्य हो, और इस प्रकार का आग्रह तो कदापि नहीं रखूंगी कि मैं जो कहूं वही सब माने, और इस प्रकार का विचार भी छोड़ दूंगी कि मेरे लिए, मेरे हिसाब से और ये परिवार चलना चाहिए, और अ, मैं प्रिंसिपल ब्रेड विनर हूं, तो मेरी वजह से ये परिवार चल रहा है। तो इस प्रकार की बात आई
प्रार्थना की। ये प्रार्थना रेबेका बियर्ड, ये लेखिका, लिखती है कि हर रोज आप करें, इस प्रकार की एक एडवाइस उन्होंने दी। फिर थोड़े दिन के बाद ये महिला वापस मिलती है रेबेका बियर्ड को और बोली कि मेरा आर्थराइटिस का जो दर्द था वो संपूर्ण चला गया, आई एम बैक टू नॉर्मल। क्योंकि एक मानसिक तनाव था, उसकी इफेक्ट शरीर पे आ रही। डॉक्टर्स भी लिखते हैं कि 90% ऑफ आवर डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। मतलब मन अस्वस्थ है तो शरीर में तकलीफ आती है। आज ये बहुत रिसर्च हुई है, साइंटिफिकली, क्लिनिकली इट हैज बीन प्रूव्ड दैट आपका मन अस्वस्थ है, कॉन्स्टेंटली तनाव में रहता है, चिंतित रहता है, प्रश्न 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 मन में चलते रहते हैं, और इसी पे आप अटेंशन लगा के दिन में अपनी छोटी मोटी दिनचर्या करते हो, या वो ही आपके विचार में केंद्रित रहता है, तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। एंड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंड दे से कि इट कैन रिजल्ट इनटू कैंसर आल्सो। सो परिवार में हम सब एक हैं, इट्स अ डिवाइन यूनिट, गॉड हैज ब्रॉट ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो हम सब एक हैं, एक मित्र भाव से, एक समसुहृद भाव, एकता की भावना से हमें साथ में रहना है। तो never ever keep the attitude of being special in the family, of being a big one in the family. Always feel like, okay, fine, I'm part of the family. I'm here to give joy to everybody. I'm here to be a part of the happy unit. और मिलजुल के साथ में आनंद से रहना, तो आपको जीवन में पारिवारिक जीवन का आनंद आएगा। ऐसे इंट्रोडक्शन में जब भी बताया, I personally met more than 25,000 families and set minimum like 20 minutes or like more than 1.5 hour with this families. So 25,000 परिवार के साथ मैं व्यक्तिगत मिला हूँ दुनिया के 30 देशों में, और सभी के साथ बातचीत की है, उनके प्रश्न छोटे मोटे उनसे कुछ वार्तालाप किया है, कुछ चर्चाएं की हैं, कुछ सॉल्यूशंस के लिए कुछ मनोमंथन किया है। तो उससे ये जो थोड़ी बातें नजर में आई है वो आपके पास मैं रखता हूँ। आई जस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू। The joys of family life है, प्रथम बात यह है कि don't keep the attitude of being the big one, being the special one in your family. You are part of the family. You are right in the midst of your family, physically, mentally, emotionally, and you are a divine unit. You are one unit. इस प्रकार के भाव से आप रहे तो आनंद आएगा। अपेक्षा नहीं, zero expectation, 24 hours, 365 days, and for your whole lifetime of 70 or 80 years, it is giving, 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 or giving. मतलब प्रेम, आदर देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता। ये हमने हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में देखा है। हम 1100 संत हैं जो प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा दीक्षित हैं। इन सभी संतों ने जो शास्त्र में बातें लिखी हैं कि a saint can love like 1,000 mothers, एक संत है वो 1000 माता का प्रेम दे सकते हैं। तो इस प्रकार की अनुभूति हम सभी संत ने प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में की। हमको प्रेम से बुलाते थे, बातचीत करते थे, हमारे प्रश्न सुनते थे। इतनी बड़ी संस्था लेके बैठे थे प्रमुख स्वामी महाराज। जो संस्था से मैं आ रहा हूँ, BAPS स्वामीनारायण संस्था, वो दुनिया की प्रथम 10 बड़ी संस्था में से एक संस्था है। We have got a permanent state as an NGO, status as an NGO in the United Nations. और 1100 से भी ज्यादा हमारे देश प्रदेश में अक्षरधाम मंदिर संस्कार केंद्र है। आपके नासिक में भी गोदावरी नदी के किनारे भी पत्थर का, गुलाबी पत्थर का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। आधे तक तो आ गया है, आप सभी ने वहां उस रोड से जाते वक्त शायद देखा होगा। और आपने अक्षरधाम तो देखा ही होगा गांधीनगर में या दिल्ली में, यस और नो, देखा होगा। तो उस संस्था से मैं आ रहा हूँ। हमारी 160 से ज्यादा सामाजिक, शैक्षणिक, तबीबी, पर्यावरण लक्षी प्रवृत्तियां देश प्रदेश में चल रही हैं। हम सैकड़ों संत, हजारों हरिभक्त इस प्रवृत्ति में जुड़े हुए हैं हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से। तो इन सभी कुछ प्रवृत्तियों के बीच प्रमुख स्वामी महाराज दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में व्यक्तिगत गए, घर घर गए, 3.5 लाख घर, ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान में उन्होंने पधरामनी की। और प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में
इतना सब पुरुषार्थ किया समाज के उत्कर्ष के लिए, समाज को संस्कारित करने के लिए, तो भी फिर भी वे हमारे लिए इतने समय निकाल सकते थे, बैठ सकते थे, बातचीत कर सकते थे, आनंद कर सकते थे। तो कहने की बात यह है कि आप एक परिवारजन हो, समय निकाल के सभी के साथ मिल-जुल के साथ में रहना, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लाइफ है 2 जनरेशन के बीच जो मतभेद है। आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में भी होंगे शायद। तो आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छी तरह से आप समझें, उनको अच्छी तरह से आप सुनें और उनकी जो मन की इच्छाएँ हैं, उस पे आप एक विचार दें। और अगर आपने अपना ही विचार उन पे थोप बिठाया कि मैं जो कहता हूँ, वही तू कर, या उसकी जो इच्छा है उस मुताबिक आपने शायद करने नहीं दिया कोई भी वजह से, कोई भी कारण से, तो एक जनरेशन गैप बढ़ जाता है। आज कहीं पेरेंट्स की ये एक शिकायत है कि बच्चे मानते नहीं हैं, कुछ कहते हैं तो सुनते नहीं हैं, अपनी दुनिया में मस्त हो गए हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं। ये सभी छोटी-मोटी फरियाद, शिकायतें ये बड़ों की हैं, मतलब माता-पिता की हैं। और यंग जनरेशन की ये फरियाद है कि माता-पिता हमें समझ नहीं पा रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो हमारी दृष्टि से देखना नहीं चाहते हैं। उनकी ही वो पुरानी दृष्टि और पुराने विचार से हम जो कहते हैं, वो इवैल्यूएशन करने का प्रयत्न करते हैं। तो एक जनरेशन गैप है। तो एक अंग्रेजी में एक अच्छी कहावत है कि व्हेन योर सन्स फुट सेट्स इनटू योर शू, ही इज नो मोर योर सन, ही इज योर फ्रेंड। एक मित्र भाव से उनसे बर्ताव करें, लड़का हो या लड़की, लेकिन वो अपर टीनेज में, यंग एज में आ जाए, तो आप उनके साथ एक मित्र भाव से उनसे आपका वर्तन रखें। तो एक्सचेंज अच्छी तरह से होगा, एक निष्कपट भाव से होगा। उनके मन में जो बातें होगी, वो प्रेम से आपको कह पाएँगे और एक परिवार में एक सद्भाव का वातावरण तैयार हो जाएगा। और आपने ये नहीं किया और अपने ही बात चलाई कि बच्चे समझते नहीं, उनको यही करना चाहिए, गुस्से में आप रहते हैं, अब आग्रह रखते हैं कि ये बच्चे यही करें, तो बड़ी तकलीफ आ सकती है। मैं एक आपको प्रसंग कहूँ एजुकेशन का ही, आप जान के आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि वहाँ मुंबई की ही बात है, एक परिवार में एक लड़का, उसका नाम था अजीत नामवर, बहुत तेजस्वी था। He was very intelligent and extraordinary in academics. He used to always score in the top ranks in his school. He appeared in the 12th standard board exams for Maharashtra Education Board, and he was among the top 10 in the board exams as well. He had a wonderful career ahead of him. It was his dream to become an open heart surgeon. He wanted to enter medicine and he wanted to make a career as a doctor. He had a dream. लेकिन उनके पिताजी की इच्छा ये थी, his father's wish was that he should become a mechanical engineer. He said, "No, Dad, I want to become a doctor." पिताजी आग्रह रखते तो उसका कारण ये था कि पिताजी की इच्छा थी कि वे मैकेनिकल इंजीनियर बने, लेकिन कोई भी कारण बने, वे अपने जीवन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। तो पिताजी का ये आग्रह रहा। अजीत नावर की इच्छा थी कि मैं मेडिसिन करूं। फिर पिताजी का दुराग्रह था, जैसे मैंने बात बताई, एक बात उनके सर पे ठोक बिठाई। तो he appeared for IIT open exams. I'm talking of many years back. He topped IIT exams, open exams, and he took admission in mechanical engineering at IIT Powai, that is in Mumbai. But he was never interested in engineering. उसका मन ही नहीं लगा. He failed the first semester. He failed the second semester, so he had to repeat the year.
फिर बहुत कुछ कहा, सुना, पीछे पड़ गए परिवारजन, तो ही क्लियर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आए, फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से ही फेल। Then once he was standing in the lobby of the college building with a couple of his friends, and the professor for applied mechanics just happened to pass in that lobby. He saw Ajit Nabar and he passed a comment, very joking, demeaning Ajit Nabar. He said, Ajit, you have scored 0 out of 40 in the internal exams in applied mechanics. Now, if you want to pass this subject, you need to score at least 40 out of 60, the external exams. So that will give you 40 out of 100. But I don't think you'll be able to score. आप इतने अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, you cannot score. अजित नाबर को ये बात जरा दिल में लग गई। उसको लगा कि ये प्रोफेसर को मेरा कैलिबर पता नहीं। It is just because I'm not interested to study engineering. I'm not paying my attention to the studies. And so I'm faring very badly. If I concentrate, if I study, I can show my caliber to these people. एक मन में बात लगी। उसने applied mechanics के प्रोफेसर को पूछा, सर व्हाट इज योर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड आउट ऑफ 60 इन अप्लाइड मैकेनिक्स सो फार? प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा कि वो आपको जानने की जरूरत क्या है, पहले आप पास होके तो दिखाओ। अजित नाबर ने कहा कि सर जस्ट गिव मी द नंबर। Professor said it is about 52 out of 60, which is a national record for IITs in applied mechanics, third semester mechanical engineering. सबके बीच अजीत नाबर challenged his professor. Yes, sir, I will break this record after 15 days. Event होगी, and I will score 60 on 60 and take this from me today. प्रोफेसर को बहुत आश्चर्य लगा, हंसने लगे और वहां से चले। Ajit Navar immediately left for library, picked up the books, started reading, बहुत मेहनत की, and when he appeared for the final exams of third semester in applied mechanics, he wrote wonderfully. And when the results were out after a few weeks, Ajit Navar had scored 60 on 60 in applied mechanics, which is a national record even today. फिर से बाकी के 4 सब्जेक्ट में फेल और सेकेंड ईयर में फेल हुए। He dropped out of the course. आपको जान के आश्चर्य लगेगा और दुख भी होगा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब ये लड़का अजीत नाबर, today he is in his mid-30s, is working as an ordinary mechanic in a mechanic shop in Mumbai. क्या कारकिर्दी थी, मतलब क्या करियर उसके पास थी और क्या अभी वो कर रहा है। उसके सपने, उसके इंटेलिजेंस, उसकी ताकत सब धूल में मिल गया। क्यों? पिताजी का दुराग्रह कि आप यही पढ़े, आप यही करें, आपको यही बनना है। तो आपके बच्चे जब अपर टीनेज में हो, यंग एज में हो, मैच्योर हो, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स आप सुने, लाइक्स डिसलाइक्स आप पहचानने का प्रयत्न करें और उसके हिसाब से आप उनके साथ बर्ताव रखें। तो जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में ये भी एक बड़ी बात है कि यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट जनरेशन। तीसरी बड़ी बात है जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में कि यू नीड टू हैव अ डेफिनेट वैल्यू सिस्टम इन योर फैमिली। चारित्र, जिसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, वो प्रॉपरली डिफाइन आपके बच्चों के दिमाग में, दिलो दिमाग में बचपन से होना चाहिए। The do's and don'ts should be clarified from early childhood. Your children and all the family members should know that this can be done, this cannot be done. ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब बचपन से उनके जीवन में ये तय करके रखना। व्यसन हो, कोई कुसंग हो, ये
किसी भी प्रकार से परिवार में कोई भी व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आना चाहिए. तो define a proper value system in your family. Even you as elders of the family, even you as the principal breadwinner of the family, you also have to obey, and you also have to have imbibe this moral value system in your life. And when you have this moral value system in your life, it strongly binds the family. You are all principally, ethically, with a stance, strongly connected with your near and dear ones. तो इस प्रकार के चारित्र की बात बचपन से आप बच्चों को सिखाएं. आप में से कितने यहाँ बैठे हो जिन्होंने श्रवण, प्रहलाद, नचिकेत और ध्रुव की बातें आपके बच्चों को कही? बहुत कम होंगे. बाकी की सब बातें इंफॉर्मेशन के रूप में आपने की होगी, या वो भी जान लेगा अपने मित्रों से या टीवी से. लेकिन कैरेक्टर की बातें, फैमिली वैल्यूज की बातें आपको बचपन से करनी चाहिए. और जब वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है, it becomes a different person. So I quite occasionally, rather on every occasion, I tell to the audience when I'm talking of value system and when I'm talking of family values, कि देखो, aspire to make your children academically well qualified. At the same time, they should be wonderful human beings. ये इसका कॉम्बिनेशन आपको करना है. प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, ये जो गांधीनगर अक्षरधाम, दिल्ली अक्षरधाम के सर्जक प्रमुख स्वामी महाराज, और अभी अमेरिका में भी 265 एकड़ पे ऐसा अक्षरधाम भर रहा है. बड़ी अच्छी प्रदर्शनी वहां भी लगाई जाएगी और हजारों लोगों को भविष्य में ये संस्कार वहां से प्राप्त होंगे. प्रमुख स्वामी महाराज ने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कई प्रकार की प्रवृत्ति उनके सत्संग मंडल के द्वारा विकसित इस संस्था में और समाज में की. ये प्रमुख स्वामी महाराज अपने अनुभव से एक अमृत बात बहुत अच्छी करते थे. He used to say कि अगर आपने अपने परिवारजनों को, स्पेशली अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया, तो शायद एक दिन आपके जीवन में ऐसा आ सकता है कि आप अपने बच्चों को गवा देंगे, आप अपनी संपत्ति और संतति दोनों गवा देंगे. और ऐसी बारी कहीं परिवार में, समाज में आती है, ये हमने देखा. एक प्रसंग में आपको बताऊं कि जब वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होती है, तब आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति बन जाते हो. टैलेंट्स तो कम ज्यादा हो, बुद्धिमत्ता कम ज्यादा हो, या कोई आपका विशेष परिचय समाज में कम ज्यादा हो, लेकिन if you stand by a strong value system in your life, you will be respected, you will be loved, you will be welcome. आप सभी ने बड़े जादूगर थे किलाल, उनका नाम सुना होगा. वे एक विश्व प्रसिद्ध मजिशियन थे. और बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती राज कपूर, उनका भी नाम आपने सुना होगा. दोनों बड़े अच्छे मित्र. जब भी कोई पार्टी होती थी, तब एक दूसरे को बुलाते थे. बड़े अच्छे मित्र थे. कई बार परिवार साथ में भोजन लेते थे, बाहर घूमने भी साथ में जाते थे. इतने बड़े अच्छे प्यारे दोनों मित्र थे. एक बार आरके राज कपूर साहब ने मुंबई में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया. बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उस पार्टी में सब थे. इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे. इट वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल पार्टी. ऑफ कोर्स एज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ डिग्निटरी, किलाल साहब को भी इनविटेशन था, वे भी वहां पधारे. And the party was going on. At that, Kapoor saw that everybody had a glass of wine in their hands, but Kelal, he had a glass of lemon water in his hands. तो आरके साहब वहां जा पहुंचे उनके पास और बोला, केलाल क्या है कि सब कोई वाइन ले रहे हैं, आप सिर्फ ये लेमन वाटर ले रहे हो. केलाल साहब ने कहा कि आरके, आई एम कंफर्टेबल, आई एम फाइन, आप जानते हैं मैं वाइन नहीं पीता हूँ. आरके ने बोला, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी दृढ़ नियम है, नहीं लेते हो ठीक है, लेकिन साल में कभी एक दो बार कोई ऐसी पार्टी हो, सब हो साथ में हो, इस प्रकार की एक महफिल हो
गैदरिंग इस प्रकार की हाई प्रोफाइल की हो तो थोड़ा बहुत सभी के साथ कुछ ले सकते हैं। किलर ने कहा कि आर के, आई एम सॉरी, लेकिन आई नेवर हैव एवर टच्ड वाइन इन माय लाइफ, आई कैन नॉट हैव अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ ड्रॉप ऑफ वाइन इन माय माउथ। तो आर के ने कहा कि देखो, एक मित्र भाव से मैं कह रहा हूँ कि आप ये लो। किलर ने कहा कि एक मित्र भाव से मैं भी कह रहा हूँ कि आप ये आग्रह छोड़ दो। किलाल साहब ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, आई विल डिप अ स्पून इन माय कप ऑफ वाइन एंड देन आई विल डिप दैट स्पून इन योर कप, जिसमें आप लेमन वाटर पी रहे हैं। फिर आप पी लेना तो भी मैं मानूंगा कि मेरा मान आपने रख लिया। किलाल साहब ने कहा कि सॉरी आरके, ये भी नहीं हो सकता है। तब आरके ने कहा कि सी किलाल, मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर की सौगंध से मैं कहता हूं कि आप पियो। तब किलाल साहब ने कहा कि आरके, मैंने भी मेरे पिता को एक वचन दिया है और उस वचन से मैं बंधा हुआ, मैं भी अपने जीवन में कभी वाइन नहीं पी। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं आपके पिताजी का वचन रखूं, मतलब आपकी सौगंध रखूं या मेरी सौगंध। तब आरके के मन में भी आंसू आ गए, हक किलाल, और बोले कि किलाल, आज तूने सबसे बड़ा जादू किया है। मेरे अंतर में तेरी जो छवि थी वो आज बहुत बड़ी बन गई। ऐसा अभी मुझे महसूस हो रहा है कि तूने मुझ पे कुछ जादू कर दिया है। आई एम प्राउड टुडे किलाल टू हैव यू एज माय फ्रेंड। ये महफिल में मैं जब हाथ बढ़ा रहा हूं तभी तेरी वैल्यू सिस्टम तुझे याद आई, और वैल्यू सिस्टम में तू एक अड़ी खड़ा है। आई एम प्राउड ऑफ यू किलाल, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो देखो, ऐसे वैल्यू सिस्टम से अगर आप अपने परिवार को जुड़ सकते हो, एक वैल्यू सिस्टम अपने परिवार में क्रिएट कर सकते हो कि ये डोस एंड डूज आपके सभी परिवार के जीवन में क्लियर हो, तो he becomes a different human and he is respected. Definitely people respect intelligence, talent, experience. At the same time, people respect value system a lot. हमको तो देश प्रदेश में बहुत अनुभव हुआ है, और प्रमुख स्वामी महाराज ने इस बीएपीएस संस्था में हजारों की तादाद में अच्छे युवा तैयार किए हैं। जब अमेरिका में हमारे कन्वेंशन एवरी ईयर होते हैं तब 10-10 हजार ये बच्चे युवा हमारे साथ 5-5 दिन 7-7 दिन बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में रहते हैं। तो ये बच्चे, ये युवा अब अमेरिका में पैदा हुए, भी बड़े हुए हैं, और वहीं सभी के साथ अमेरिकन, स्पेनिश, मैक्सिकन किड्स के साथ रहे हैं। सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, आनंद से रहते हैं, खेलते कूदते हैं। लेकिन एक वैल्यू सिस्टम जो बीएपीएस सत्संग में बच्चों को और युवाओं को दी गई है कि आप यही कैरेक्टर से रहे, तो ये बच्चे भी अगर कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है, और कुछ केक में या चॉकलेट में एग हो तो कभी नहीं खाते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम से ये लोग रहते हैं। तो हमारे संस्कार रहते हैं, हमारे रूट्स के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो आप भी अपने परिवारजनों में एक वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि नॉट ओनली बिकम्स एकेडमिकली वेल क्वालिफाइड, नॉट जस्ट ही बिकम्स a smart professional, but at the same time becomes a great human being. और आखिर बात मैं ये करना चाहूंगा कि आपके परिवार में आप भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति भी आपके बच्चों को, परिवारजन को दृढ़ करवाएं, क्योंकि increasingly now it has become a fact, a reality, scientifically and experimentally proved that your faith in God and your connection with God through prayers, chanting the holy name, मंदिर दर्शन, संत समागम, शास्त्रों का पठन, कुछ भी हो, can give you distressing in the evening, can give you much better mental and emotional health, can make you a more soft and clear thought process person. और आप अपने परिवारजन, अपने मित्रों के साथ, अपने वर्किंग कलीग के साथ अच्छी तरह से पेश आ सकते हो। ऐसी हजारों बातें, आप भगवान के प्रति श्रद्धा से कुछ तरीके से आप जुड़े हुए हो तो आपके जीवन में ये आ सकती है। ये साइंटिफिकली एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर आप देखें, टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज ऑफ द वर्ल्ड, आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके बैठे हो, चलाते हो, अच्छी तरह से सब विद्यार्थी को गाइड करते हो,
तो मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर आप देखें तो टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज इन द वर्ल्ड, ऑग मैंडिनो है, केन ब्लैंचार्ड है, एंथनी रॉबिन्स है, स्टीफन कॉवी थे, ये सब टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को ये बताते हैं कि यू मस्ट कनेक्ट विथ योर क्रिएटर थ्रू प्रेयर्स एवरी डे। रोज आप प्रार्थना करना, कुछ नाम स्मरण करना, तो सुबह की प्रार्थना आपको प्रेरणा दे सकती है, शाम की प्रार्थना आपको डिस्ट्रेस कर सकती है। भगवान के नाम स्मरण से आपका विल पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपके एथिकल वैल्यूज स्ट्रांग होते हैं, आपके कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, और आपकी याददाश्त भी बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। सभी कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड है। यू कैन गो ऑन गूगल, मेक अ सर्च एंड यू विल फाइंड ऑल दिस। तो इस कोरोना वायरस में तो स्पेशली हमें ये बहुत कुछ प्रतीति आई है कि यू नीड 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 गॉड फॉर योर सर्वाइवल। यस और नो? अभी तो कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन तो है नहीं जैन साहब, है नहीं कोई वैक्सीन तो Yes, yes. तो अभी तो यही बात है कि भगवान की कृपा से ही हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे। नो डाउट हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, मास्क पहनते हैं, और लॉकडाउन की परिस्थिति में है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ योगासन से लेके, कुछ हॉट वाटर से लेके, टर्मेरिक हल्दी वगैरह का उपयोग करते हैं, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। फिर भी अभी तो यही लगता है कि अगर आप कोरोना से बच गए, बच पाए, तो ये भगवान की कृपा ही समझ। ये सर नो? क्योंकि हमारे पास कोई दवाई तो है नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है, एंटीडोट नहीं है, कुछ नहीं है। Yes, very true. हाँ, तो you need God for your survival. So I say the biggest lesson that mankind can learn from this coronavirus is that he accepts God, that in his life fully, that he is the principal source of my survival. तो हमें कुछ ये कोरोना वायरस ने बहुत कुछ अच्छी बातें बताई है जो हम जॉयज ऑफ फैमिली की लाइफ में अच्छी तरह से इसका सही प्रकार से उपयोग करके हम कर सकते हैं। एक तो ये बात है कि health is your most valuable wealth, isn't it? Second, family is the primary source of happiness. Third, jobs are temporary. ये भी एक बात पता चली हमें ये कोरोना वायरस के, जॉब्स आर टेम्पररी, कभी कुछ बदलाव बड़ा भी आ सकता है। फोर्थ, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड हाइजीन। I am fully responsible to take care of myself and I am fully responsible for my health and hygiene. ये तो कोरोना वायरस से सबको पता चल गया है। और ये भी एक बात सबको पता चली है कि you need to save your money। कभी भी कुछ आ सकता है, 4-6 महीने के लिए आप अंदर हो सकते हो, अंदर मतलब जेल में नहीं, घर में अंदर हो सकते हो, घर में और परिवार में। you need to save your money। और सबसे बढ़िया बात, ये पॉजिटिविटी के दृष्टि से अगर आप देखें तो कोरोना वायरस ने हमें ये सिखाया है कि अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव, यू नीड गॉड फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी। क्योंकि आज घर घर में स्पिरिचुअलिटी से ही लोग मानसिक तनाव से, स्ट्रेस और टेंशन से बच रहे हैं। तो कभी कोई बात मैंने मैसेज में 2 दिन पहले मेरे कोई मित्र ने भेजी थी मुझे दिल्ली से, एक व्हाट्सएप पे एक अच्छा मैसेज था, वो मैं शेयर करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस ने भगवान को कहा कि देखो भगवान, मैं तो छोटा सा हूँ, इनविजिबल हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ताकत आपने देख ली, मैंने सभी मंदिर आपके बंद करवा दिए। भगवान ने कहा कि बात तो सही, बात तो आपकी सही है कि आप छोटे हो, इनविजिबल हो, मतलब हम ह्यूमन आई से उनको नहीं, उसको नहीं देख पा रहे हो, इतना छोटा वायरस है। आपकी ताकत तो बहुत बड़ी, आपने सभी मंदिर बंद करवा दिए, लेकिन आप में मैंने ही प्रेरणा की थी कि बाहर के सब मंदिर आप बंद करवा दो ताकि मैं हर घर में एक मंदिर खुलवा सकूं। और आप देखो, हर घर में मंदिर में प्रार्थना हो रही है, कुछ मंत्र जाप हो रहा है, हे भगवान, हे ईश्वर, हमें इससे कुछ बचाए। तो गॉड वांटेड टू ओपन अ टेम्पल इन ईच एंड एवरी हाउस सो ही कैन प्ले। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को जो तकलीफ आई, लोगों को जो ये कोरोना वायरस से उनके परिवार में जो मृत्यु, उससे हमें भी दुख है, हमें भी दर्द है, और हम सब परिवार के जन के साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन एक लाइटर मोमेंट में, एक पॉजिटिव मोमेंट में ये बात है कि भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ गई है। तो कहने की बात यह, मैंने 4 बातें आपको बताई जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में,
प्रथम बात यह है कि you need to introspect and decide that where I need to make a small change in my physical, mental behaviors and attitudes to become a very good and acceptable family member. सेकेंड बात, हमने वो लेखिका रेबेका बियर्ड की बुक एवरीमैन्स मिशन से बात ये सुनी कि मैं ये एटीट्यूड कभी नहीं रखूंगा कि मैं जो कुछ कहूं वैसा ही सब माने और बिहेव करे फैमिली में, मुझे एक्सेप्ट करे। तीसरी बात, मतलब इस बात दूसरी बात के साथ, आई जस्ट गिव लव टू माय फैमिली, सेल्फलेस लव टू माय फैमिली, केयर टू माय फैमिली, आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड अ फैमिली मेंबर। तीसरी बात हमने ये सुनी कि अजीत नाबर के प्रसंग से कि जब जनरेशन गैप की बात आती है तब अच्छी तरह से नेक्स्ट जनरेशन को सुनना समझना। और चौथी बात हमने ये सुनी कि वैल्यू सिस्टम परिवार में बचपन से आप अपने बच्चों को कहेंगे, बात करेंगे, दृढ़ करवाएंगे, सभी फैमिली मेंबर्स। उस वैल्यू सिस्टम में आइसिंग ऑफ द केक है फेथ इन गॉड एंड योर कनेक्शन विद गॉड, नॉट जस्ट फेथ बट योर कनेक्शन विद गॉड डेली थ्रू प्रेयर्स और नामस्मरण। That can make your family strong। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने, आप एक अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो के वाक, तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया भी बड़ी अच्छी एक इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने रिसर्च और सर्वे करके ये बताया कि जो फैमिली मेंबर्स में रिलीजियोसिटी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग है, उस फैमिली मेंबर्स में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस की वैल्यू और एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस भावना ज्यादा है। तो ये आप बड़ी बात अपने जीवन में रख सकते हो। तो दिस आर द जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ। My prayers for all of you who are attending this webinar, for your family members also, that you have all this thing in your family। ये कोई मैंने ये नई बात नहीं बताई है, लेकिन बार बार ये बात हम जब दोहराते हैं, बार बार ये बात सुनते हैं, विचार करते हैं, दृढ़ करते हैं अपने मन में, तो ये बात एक हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है। तो ये बातें हमारे जीवन में ज्यादा दृढ़, and we can enjoy our family life much better। Thank you very much and my all prayers for all of you, and may my Guru Hari Param Pujya Pramukh Swami Maharaj and Pragat Guru Hari Param Pujya Mahan Swami Maharaj bless you all and your family। Namaskar और जय स्वामी। Thank you so much, Swamiji, for your wise words. Now it's time for some question from our participant. As we are short of time, we can include few questions. The first questions asked from amongst the participant is how to maintain mental health during this pandemic. इसमें दो तीन बातें हैं। If you want to maintain a proper mental health, first is जो आपकी हॉबीज है, आपके शौक है, उसमें थोड़ा समय बिताना। एक बात मैं कहूंगा, इफ यू कैन डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग, ये सबसे बड़ी बेस्ट हैबिट है, क्योंकि बुढ़ापे में फिजिकल मूवमेंट शायद कम हो सकती है, फिजिकल एनर्जी कम होगी, तो रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट। यू कैन सिट बैक एट होम, रिलैक्स एंड रीड सम गुड बुक्स ऑफ योर चॉइस। सो हॉबीज में आप टाइम बिताएं। सेकेंड थिंग, आपके परिवार के साथ आप बैठे बातचीत करें, बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ प्लानिंग करें, फ्रेंड्स जो आपके सोशल सर्कल है उनके साथ समय बिताएं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। पॉजिटिव रहने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। वो क्या है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ अच्छा होगा, गुड रे ऑफ होप। भगवान मेरा अच्छा ही करेंगे, दैट इज पॉजिटिविटी। भगवान मेरा कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे, मेरा और समाज का सभी का कुछ अच्छा होगा। तो इस प्रकार की एक पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिटी से आती है। तो दिस थ्री थिंग्स कैन कीप योर मेंटल हेल्थ स्टेबल। फर्स्ट इज योर हॉबी, second is your family and social connections, and third is spirituality। Thank you। Thank you, Swamiji. The second question is, what is your opinion regarding the use of traditional method during COVID-19 situation? और ट्रेडिशनल मेथड्स में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की ताकत तो जरूर है। हमारे आरोग्य कार्यालय ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी, गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये बातें की है कि इफ यू कैन डू योगासन्स रेगुलरली,
if you can bank upon some traditional immunity boosters, हल्दी है, हनी है, मतलब टर्मेरिक एंड हनी, कई ऐसी बातें हैं, तो you can boost your immunity system. तो योगासन और traditional herbs can definitely boost your immune system. Secondly, एक traditional परंपरा है हमारी ये कि हम हर रोज शाम को परिवार के साथ आनंद से बैठते हैं, तो that can also infuse a ray of hope, a ray of positivity, a ray of good emotions in your life, in your hearts within. तो आप वो भी आपकी अच्छाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, prosperity के लिए, immune strength बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है. These are some traditional things that we can definitely inculcate in our daily routine to make our immunity strong. Thank you. Thank you, Swamiji, for enlightening us. The third question asked is how to become a stress-free in a life. Absolute spirituality is only and only way to become absolute stress. देखो, शारीरिक परिस्थिति तो बदलेगी जीवन में. आप पतले हो, मोटे भी हो सकते हो. आप अभी स्वस्थ हो, शायद कोई डिजीज आपके जीवन में आ सकती है. ये सब कुछ हो सकता है. आपका परिवार अभी संगठित हो, साथ में बैठे हो, लेकिन शायद कोई परिस्थिति आ सकती है कि परिवार बिखर गया. तो परिस्थिति तो आती जाती रहती है जीवन में. In the midst of this, if you want to remain mentally stable, mentally strong, तो एक ही बात है कि you become strong as a spiritual person. वो strength क्या है? First, your daily connection with God through prayers and namsmaran. Second, chanting the holy name as much as you can during the daytime. Third, accepting God as the all-doer. This is the most important aspect of spirituality. That you accept God as the all-doer in your life. Whatever happens in my life, whatever has happened so far, and whatever will happen, happens for my good, happens for my progress. And if I keep this attitude, it can keep me mentally fit and strong. Accept God's doership in your life. He's our parent. He's there to do our all good. He's not our enemy. He doesn't want to disturb us, weaken us, or kill us. So accept God as the all-doer in your life. प्रमुख स्वामी महाराज ये बात कहीं बार कहते थे कि भगवान ही सर्व करता है. कोई गंभीर परिस्थिति में आप आ गए, तो जो भी आपकी शक्ति हो, आप उस गंभीर परिस्थिति में लगा के उससे बाहर निकलने का प्रयत्न जरूर करें. वो एक मनुष्य का कर्तव्य है. लेकिन स्वीकार कर ले कि भगवान की इच्छा, तो तनाव कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा, और इस परिस्थिति में से भी भगवान मुझे बाहर निकालेंगे, मैं प्रयत्न करूंगा. तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. दिस इज हाउ यू कैन बी permanently stress free in your life, by being a strong spiritual person. Thank you. Swamiji, can you repeat the examples you gave, because they are most appropriate in this particular topic? The example of Warren Buffett's family and Birla regarding that switching off the mobile phone. हाँ, कई बार मैं ये बात करता हूँ कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो उनके जीवन में ये एक नियम है कि शाम को 6 बजे वे मोबाइल फोन ऑफ करके परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ समय गुजारते हैं. And he spends quality and quantity time with his family. Since last 50 years, he has been having dinner with family. They spend good half an hour quality family time. They have tuition their children, their grandchildren, and their great grandchildren together. Even Aditya Birla family, they have a custom in the Birla house that at 8 p.m. everybody shuts off their mobile, and they are at the dining table. Even even Kumar Mangalam Birla, the head of the Aditya Birla family, even he has to deposit his mobile to his mother, that is Aditya Birla's widowed wife, that is Kumar Mangalam's mother. And from 8 to 8:45 p.m., everybody is at the dining table enjoying family time, talking family happenings, and planning some family events, if at all in the future. And this is how they spend quality time. So when it comes to family time, you have to decide your mobile, you have to switch off your mobile, only then you enjoy it. तो ये एक पारिवारिक जीवन का आनंद है. Thank you. Thank you, Swamiji. The last question asked from participant is that what is happiness?
Happiness does not mean that you never get disturbed. Happiness does not mean that everything in life goes your way. Happiness does not mean that whatever you choose to happen, whatever you wish to happen, definitely happens in your life. It may or may not. But happiness is a state of mind in which first comes acceptance of happenings in your life. Accept that many rights can happen in my life, many wrongs can also happen. प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने ये देखा है कि दिल्ली का अक्षरधाम बनाना था, तो उनके जीवन में कई बातें ऐसी बनी कि जो पुष्टि रूप थी और कई बातें ऐसे बनी जो अवरोध रूप थी, लेकिन सभी परिस्थिति में वे स्टेबल थे। लंदन में जो बीएपीएस मंदिर बना, जो रिसाइजेस ने लिखा कि इट्स 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड 1995 में, तो उसके निर्माण में भी कहीं परिस्थिति का सर्जन ऐसा हुआ कि उनके वो सही भी रही या तकलीफ देने वाली भी रही, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज वाज स्टेबल. So happiness is first acceptance of happenings in your life. Second, how can I positively come out of it? ये प्रयत्न आप करते रहना, भगवान की इच्छा समझना, भगवान को प्रार्थना करते रहना. So happiness is a state of mind, irrespective to the state of physical happenings in your life or any other social or emotional happenings in your life. That you accept it, remain stable, accept it as a happening created by God, try to come out of it positively, keeping your values intact, keeping your virtues intact, and still being humble, still being straightforward. And that is a state of happiness in life. Thank you. Thank you so much, Swamiji. Now I would like to invite Professor S.P. Godse sir to kindly propose the vote of thanks. Thank you, Cody sir. I'm really honored for getting an opportunity to present a vote of thanks for the program. First of all, I would like to thank Swamiji for enlightening us with your wise words and introducing the simple joys of family life in a new and more enjoyable forms. Thank you very much, Swamiji. Your words has really transformed the attitude towards a life. Next, I would like to thank the participants for your enthusiasm throughout the session. I would like to thank the management for providing us an opportunity to conduct such a wonderful session. I would like to specially mention our Honorable beloved Bhau and Honorable Trustee Ashok Bhai Merchant. They were present throughout the session. Thank you, all of you. I would like to thank Dr. Jain sir, Professor Hirole sir for their valuable guidance in organizing and making this event successful. I would like to extend my gratitude towards all the teaching and non-teaching staff, without whose efforts it would have been impossible to conduct this session. Thank you, all of you. Thank you very much. गोडसे सर, सेशन क्लोज करायचं अनाउन्स करून द्या स्वामीजींच्या परमिशनने. Swamiji, Yes. now we are closing the session. We need a permission from your side. No, it's fine. And it was fine for me that I also enjoyed. And we can announce the session closed now. Swamiji, we are truly blessed and we are really, it was a bliss to hear you. Thank you very much. No, all my prayers for all of you. And always bestow your prayers on us. Thank you. Thank you, doctor. Thank you. With the Swamiji's permission, we are going to end this session. Thank you, all of you, for presence. All my prayers for all of you. Thank you.